Hello students, once again I welcome you all in this online class. Till last video we have seen that how sacrificing and gaining ratio and as well as new ratio will be calculated at the time of reconstitution of partnership, how there will be valuation of goodwill at the time of reconstitution, and what will be the accounting treatment of the goodwill. And after that we have also studied about accounting treatment of reserves accumulated profit or loss. ठीक है, एक reserve accumulated profit or loss. In the same case, at the time of reconstitution of partnership, there may be some assets and liabilities in the business, and at the time of reconstitution, they will be reassessed from their market value. Okay. Because these all are recorded on their book value as per the historical cost concept. All the assets and liabilities are recorded at their book value or historical cost value. But at the time of reconstitution, they will be revalued or they will be reassessed with the market value. So after reassessing the assets and liabilities, there may be some increment or there may be some decrease or increase in the value of assets and liabilities. If the assets value will increase, that means it will be the gain for the firm, and if the assets value will decrease, then it means it will be the loss for the partnership firm. In the same case, if the value or if the amount of liability will go down, that means it will be the benefit for the partnership firm. If the liability amount will increase, then it means it will be the loss for the partnership business. So now we will see that what are the accounting treatment of these assets and liabilities at the time of reconstitution. So there are two methods. First method is, again there are two methods like reserve and accumulated profit and loss. When revised or altered values are to be recorded in the books. When revised or altered values are to be recorded in the books. And what is the second method? When revised or altered values are not to be recorded. Okay, when revised values are to be recorded in the book and when revised values are not to be recorded in the books. दो मेथड बनेगा यहाँ पे भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रीटमेंट के लिए. फर्स्ट मेथड क्या बोलता है? रिवाइज्ड एंड अल्टर्ड वैल्यूज आर. अब कह रहा है कि जैसे मान लो सपोज दैट देयर वाज अ बैलेंस शीट एंड सम ऑफ द एसेट्स वेयर बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000. Okay. And in the same case, plant and machinery, debtors, it is given 2 lakh, not 2 lakh, right? 80,000. Okay, these are the assets given. And in the same case, there may be liability may be given in the question. Creditors 80,000. Bank loan or bills payable 60,000, and some other item, and capital will also be there on the liability side. So if the situation is given at the time of reconstitution of partnership, if the firm situation is there that their asset side is having this assets and their liability they are having this much liability, so in that case partners will have two options. ठीक है, partners will have two options, that
at the time of reconstitution or at the time of change in profit sharing ratio, they may decide that at the time of reassessment, means by reassessing the assets value, if there will be any increase in the assets value, then increased value will have to be recorded in the final balance sheet. ठीक है, अब हमको क्या है, जैसे मान लो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 1 लाख से 1,20,000 हो गई, तो न्यू बुक में हम उसको 1 लाख पे नहीं दिखाएंगे, अब नई वैल्यू पे हम दिखाएंगे 120 पे, यानी क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू पे या अल्टर्ड वैल्यूज पे हमको दिखाना होगा. इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी है, सपोज दैट इसमें डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू हो सकता है अब 1,20,000 रहेगी, तो नाउ इन फ्यूचर इट विल बी रिकॉर्डेड 1,20,000 एंड नॉट 1,50,000. ये तो मतलब हुआ कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड. इसी तरीके से सेकंड मेथड जो है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. अब कह रहे बिल्डिंग जो 1 लाख से बढ़ के 120,000 आज की डेट में है, 1,20,000, हम नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म में, नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो भी उसको नई वैल्यू नहीं दिखाना, 1,20,000 नहीं दिखाना है, 1 लाख ही दिखाना है. तो इसका मतलब फिर हमने रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट क्यों की, तो हमको ये पता लगेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख से 120 हो जाएगा, तो इसका मतलब 20,000 का क्या हो गया, फर्म को गेन हो गया. अब उसी 20,000 के लिए क्या करना होगा, हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही रह जाएगा, बट ये रिकॉर्ड करने पे जो गेन जो कंपनी ने कैलकुलेट, जो फर्म ने गेन कैलकुलेट किया 20,000 रुपीज का, उसका एडवांटेज तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए. तो जिस पार्टनर का जो भी, जैसे पार्टनर का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पोर्शन निकालेंगे, जिस पार्टनर को गेन हो रहा होगा उस पार्टनर को डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर को लॉस हो रहा होगा उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में क्या होता है, जब भी बोले कि रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड, तो रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करने के कंडीशन में हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एसेट्स की रीअसेस्ड वैल्यूज पे होने वाले गेन या लॉस को रिकॉर्ड किया जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, नॉमिनल अकाउंट. It is just like profit and loss account. All the loss and expense for the partnership firm will be recorded on debit side, and all the gains and incomes on the reassessment of assets will be recorded on the credit side. ठीक है, अब इसको थोड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं डिटेल में थोड़ा बात कर लेता हूँ यहाँ पे. रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट है तो सारे लॉस यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस करने पे जो लॉस होंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे. और इसी तरीके से तो यहाँ पे लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कब, एसेट्स डाउन होगी, इसी तरीके से लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी उस कंडीशन में. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है. एसेट्स की वैल्यू अगर मान लो 1 लाख से घट करके 80,000 हो गई, 20,000 की क्या हो रही है, एसेट्स डाउन हो रही है, तो डाउन हो रही है तो मतलब लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, एसेट्स का वैल्यू डाउन होगी. या इसी तरीके से लायबिलिटी, मान लो क्रेडिटर्स 80,000 थे, नाउ it is decided that firms will have to pay 90,000 to its creditors. फर्म को अपने क्रेडिटर्स को 80,000 की पे 90,000 पे करना है, तो फर्म के लिए तो लॉस हुआ 10,000 का. तो अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म का लॉस है, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा. इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा. किस केस में, व्हेन assets value will increase and liabilities value will go down. ठीक है, अभी हम सेकंड मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं कि जब रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक में रिकॉर्ड करना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे होने वाले सारे गेन और सारे लॉस को हम लोग एक नए अकाउंट में दिखाते हैं, दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो एसेट्स जब इंक्रीज करेगा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करे या लायबिलिटी, जब से मान लो बिल्स पेबल 60,000 है, नाउ एट द टाइम ऑफ पेमेंट
ओनली 50,000 इज टू बी पेड अगेंस्ट बीपी। तो 60,000 पे करना था, अब 50,000 पे अगर पे करना रहेगा, 10,000 कम करना है। फर्म के लिए क्या है, गेन है, तो लायबिलिटी का अमाउंट कम होगा तो फर्म के लिए गेन है। और गेन की कंडीशन में क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, सॉरी क्रेडिट द गेन्स एंड इनकम्स। तो ये हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इनकम हो रहा है फर्म के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, when assets value will increase, एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, गेन होगा ना। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या एंट्री करेंगे, मैं सन्ड्री एसेट्स लिख रहा हूँ। सन्ड्री एसेट्स मीन्स बहुत सारी एसेट, इसमें सब कुछ जो रहेगा। जैसे बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग लिखेंगे, प्लांट दिया तो प्लांट लिखेंगे, मशीनरी दिया मशीनरी लिखेंगे, मोटर व्हीकल दिया मोटर व्हीकल लिखेंगे। तो एक सन्ड्री एसेट्स बस एक नाम है, उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि फर्म के एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म के लिए गेन है। गेन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से when assets values will decrease, ठीक है ना, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जैसे प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 से 1 लाख पे आ गया, 20,000 डिक्रीज करेगा, लॉस है, लॉस के केस में क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब क्या है, एसेट्स, सन्ड्री एसेट जो भी दिया रहेगा। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसी तरीके से व्हेन लायबिलिटीज विल इंक्रीज, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। लॉस के केस में क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी लायबिलिटी इंक्रीज की रहेगी उसका नाम लिखेंगे, तो टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू क्रेडिटर्स हो सकता है, टू बिल्स पेबल हो सकता है, टू बैंक लोन हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में व्हेन liabilities will decrease, ठीक है ना, लायबिलिटी विल डिक्रीज। लायबिलिटी अमाउंट का, अगर लायबिलिटी का अमाउंट जो है वो अगर डिक्रीज करेगा तो फर्म के लिए क्या है, गेन है। गेन के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट होगा। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट मतलब गेन, बड़ा अमाउंट होता है। इफ क्रेडिट साइड विल बी एक्सेस ओवर डेबिट साइड, देन इट विल बी प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करने पे अगर अल्टीमेटली या नेट में गेन हुआ होगा तो गेन या एडवांटेज किसको मिलेगा, पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, पार्टनर्स को गेन हो जाएगा। पार्टनर्स को जब गेन होगा, पार्टनर को कुछ भी चीज मिलती है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। टू पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट। याद रखना किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो भी रिवैल्यूएशन पे गेन या
लॉस आएगा उसको क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके बाद से फर्म आगे बढ़ जाएगी और फर्म के बुक में जाकर के न्यू वैल्यू जाकर के बुक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद लॉस अगर होता है, इफ डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीजेस और एक्सेस इन कंपेयर टू, if debit side of revaluation account exceeds credit side, in that case there will be loss, and at the time of loss it will be the partners who will suffer the loss. So at the time of suffering the loss, partners capital account is to be debited. So partners capital account are current account debit to revaluation account. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो बस इसी एंट्री की क्या एंट्री अगर पता है तो हम अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, जितना एसेट्स इंक्रीज करेगा और जितनी लायबिलिटी डिक्रीज करेगी सब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे, क्योंकि देखो एसेट्स जब इंक्रीज कर रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, अपोजिट वाला बाई सन्ड्री एसेट्स। इसी तरीके से यहाँ लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, भी गेन है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी रहेगी। इसी तरीके से अगर बढ़ रहा होगा, एसेट्स डिक्रीज कर रहा होगा या लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो किसमें लॉस होगा, लास्ट में डेबिट साइड में आएंगे, लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट्स और टू सन्ड्री लायबिलिटी। इसके बाद प्रॉफिट लॉस का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सीधे हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता है तो कैसे बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन बहुत कम दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मैं देखता हूँ। ठीक है, 30 देखोगे सारे लोग। इसमें एक चीज है कि अभी लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, रिजर्व के बारे में पढ़ा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में। अभी हम एसेट्स और लायबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो जब बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया होगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि एसेट्स और लायबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट या रिजर्व का अमाउंट भी दिया हो सकता है या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस भी एसेट साइड में दिया हो सकता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर रिजर्व दिया है तो उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा लास्ट पीछे का दो मेथड, और एसेट्स और लायबिलिटीज का उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो मिक्सअप क्वेश्चन है, इसमें रिजर्व वगैरह भी दिया है, एसेट्स और लायबिलिटी भी दिया हुआ है। तो मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ। ठीक है, और ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल के बाद जो रिवाइज्ड यानी न्यू बैलेंस शीट बनेगी जहाँ पे ये रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना होगा, वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 हम करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आर एस एंड टी वेर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बीपी दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, यानी लायबिलिटी भी दिया है, रिजर्व भी दिया है। ठीक है, और कैपिटल दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, आर एस एंड टी। ठीक है, एसेट साइड में लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक, यानी एसेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, सारी एसेट दिया हुआ है। इसी तरीके से नीचे क्या कह रहा है, आर एस एंड टी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब कह रहा है कि 2019 अप्रैल 2019 से ये इक्वल रेशियो में होना चाहते हैं। पहले 1 2 3 के पार्टनर थे, अब इक्वल होना चाहते हैं। अब उस केस में क्या एग्रीमेंट हुआ इन लोग में, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹1,50,000। फर्म की गुडविल ऑलरेडी वैल्यूड करके दिया हुआ है, कितना है, 1,50,000। गुडविल का ट्रीटमेंट सबको पता है। गुडविल के लिए हमको क्या करना है, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, वही ट्रीटमेंट है। उसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को निकालना पड़ेगा, उनकी शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा, शेयर ऑफ गेन, शेयर ऑफ लॉस कर चुके हो। कह रहे लैंड बी रीवैल्यूड। अब हमको कंबाइंड क्वेश्चन करना है। अभी हम क्या सिंगल पढ़ रहे थे कि गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है, एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करना है, और सब एक साथ कंबाइंड ट्रीट करेंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। कह रहा लैंड बी रीवैल्यूड एट ₹80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%। ठीक है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस टू बी रिटर्न ऑफ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म।
ठीक है, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब कैसे हम समझे कि ये फर्स्ट मेथड है? जब बोल दे कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो समझ जाना कि हमको रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले मेथड में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, सिर्फ एक एडजस्टेड एंट्री जो हमारी बनती है, ठीक है ना, उसी जर्नल एंट्री से ही सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, एक सिंगल जर्नल एंट्री से। जैसे हमने रिजर्व के फॉर्म में देखा, जो गुडविल की एंट्री होती है वही एक एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड ही चीजें इसमें आएंगी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अलग से होता है, गुडविल को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लाएंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट सबको पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कह रहा है लैंड टू बी रीवैल्यूड 80,000। लैंड को रीवैल्यूड किया गया कितने पे? 80,000 पे। पहले हम चेक करेंगे लैंड कितने की थी। फॉर्म जब बैलेंस शीट में जा रहे हैं, बैलेंस शीट में चेक कर रहे हैं तो 50,000 का दिख रहा है और नीचे कह रहा है कि रीवैल्यूड किया गया 80,000 का। पहले लैंड 50,000 दिख रहा था, अब 80,000 का हो गया। कितना इंक्रीज कर गया? 50 से बढ़ गया ना, तो कितना बढ़ गया? 30,000 का इंक्रीज कर गया। तो जितना नेट इंक्रीज होगा, अब इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एसेट्स बढ़ेगी तो गेन को हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय लैंड। और कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 50,000 या 80,000? नहीं, इन दोनों का डिफरेंस, यानी जितने से बढ़ गया होगा। कितने का गेन हुआ? 30,000 का। इसी तरीके से कह रहा है बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट हो गया, तो डेप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग में कमी हो गई, तो डेबिट साइड में आएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या एक्सपेंस है, लॉस है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग का ओरिजिनल वैल्यू 50,000 दिया है, 6% से डेप्रिशिएट हो गया, तो 50,000 का 6% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3,000। ठीक है, ये हमारा आ गया। ये दिया था 50,000 वैल्यू दिया था, अब कह रहे हैं 6% का डेप्रिशिएट हो गया, तो 6/100 हम निकाल लेंगे। ठीक है, 3,000। इसी तरीके से क्रेडिटर्स, अगली एडजस्टमेंट बोल रहा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में कितना दिया है? क्रेडिटर भी 50,000 ही दिया है, ठीक है ना, लाइबिलिटी साइड में। अब कह रहा है इस 50,000 में से कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब कह रहा है इसमें से 6,000 के क्रेडिटर ऐसे क्रेडिटर हैं जो अब क्लेम नहीं करेंगे। अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में वो पैसा लेने नहीं आएंगे। क्रेडिटर कौन होता है? जो फर्म से या बिजनेस से पैसा लेने वाला होता है। हो सकता है इसमें 6,000 के क्रेडिटर वो पैसा अपना छोड़ के कहीं चले गए हों, मतलब ये है कि अब वो पैसा नहीं लेंगे। तो 6,000 अगर पैसा कंपनी को अब नहीं पे, फर्म को पे नहीं करना है, तो फर्म के लिए क्या है? गेन हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। 6,000 से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो अगेन गेन है, क्रेडिट साइड में आएंगे। क्या लिखेंगे? बाई क्रेडिटर्स। कितने का कंपनी को फायदा हुआ? 6,000 का। ठीक है, अब कोई एसेट्स और लायबिलिटीज की बात नहीं हो रही है। अब हम सीधे देखेंगे किस साइड में बढ़ा रहा है, इधर आ रहा है 36,000। ठीक है, 36,000 में से 3,000 डेबिट साइड में चला गया, तो बचा कितना? 33,000। अब ये क्या है? गेन है। गेन है तो पार्टनर्स को किस रेशियो में बंटना चाहिए? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स्ड बोलेगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कौन कौन है? RST बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जैसे हम लोग अभी पहले किस में करते थे? फर्स्ट चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, ये भी 36,000 और इस साइड में हमारा कितना होना चाहिए? 36,000। अब ये जो 33,000 का गेन हुआ है, मैंने क्या बताया किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इन लोग का क्या दिया था? 1:2:3 और न्यू कितना दिया है? 1:1:1। ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। तो ओल्ड कितना हो रहा है?
6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5500, अब 5500 इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आर का रहेगा, यानी 5500। एस के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यही, तो हमारा कितना जाएगा 11000, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी का हो जाएगा, हो गया 16500। अब अंदर हम लिखेंगे टोटल कर देंगे, टोटल वही हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि हमको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो कैसे क्या होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यही बनेगा, ऐसे बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर के लिए डेबिट में 3 कॉलम और क्रेडिट में 3 कॉलम। अब बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट RST, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से। देखो कैपिटल का बैलेंस इन लोगों का कहाँ दिया है, लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस दिया हुआ है यही इनका क्या है, कैपिटल है। तो आर का दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में चेक करना सबका बैलेंस दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे बाई बैलेंस। बी अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिया रहा है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है, उसका बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बट यहाँ तीनों पार्टनर का लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो बाई बैलेंस आर का दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। एस दिया हुआ है 50,000 एंड टी 25,000। इसी तरीके से अब क्या है, रिवैल्यूएशन पे हाँ, अब देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन पे क्या दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट आया हुआ है। प्रॉफिट आएगा तो किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया 5500, ठीक है। इसी तरीके से 11,000, इसी तरीके से 16,500, ठीक है। और भी कुछ है, अब देखते हैं। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था। अब जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है या इसी तरीके से इसको ऐसे ही एज इट इज फॉर्म में रहने देना है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लास्ट वीडियो में तुमने देखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम यानी जब खत्म करना होता है बुक से, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर की कैपिटल में यानी जनरल रिजर्व को बांटेंगे, पार्टनर को मिल जाएगा 2 बाई जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया 30,000, ठीक है। इनका रेशियो क्या था 1:2:3, ठीक है। 6 से डिवाइड करेंगे, 5,000 आ गया तो इसको मिलेगा 5,000, इसको मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000, ठीक है। जनरल रिजर्व, जब रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यानी फॉर्म नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे, अब जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको बांट करके खत्म कर दिया गया। इसके बाद अब एक ट्रीटमेंट रह जाता है गुडविल का। गुडविल कह रहा है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है गुडविल होता है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। गुडविल दिया हुआ है, फर्म की गुडविल निकाल करके दिया हुआ है, कितना है 1,50,000। और एक चीज ध्यान में रहे कि फर्म का गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट यही होता है, क्या मैंने बताया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आप निकालेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। रेशियो उन लोग का
ओल्ड क्या था, ओल्ड रेशियो था 1:2:3। न्यू रेशियो कितना हो गया, इक्वल रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो निकालेंगे RST है, आर्स सेक्रीफाइस आर गेनिंग पोर्शन, गेनिंग रेशियो, आर्स सेक्रीफाइस आर गेन, ठीक है ना। ओल्ड माइनस न्यू 1/6 माइनस 1/3, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये माइनस 1/6, यानी ये क्या है, ये गेन है, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो गेन, पहले इसको कर चुके हो। इसी तरीके से एस का सेक्रीफाइस या गेन देखते हैं क्या आता है, 2/6 ओल्ड माइनस 1/3, ठीक है। इसको 6 एलसीएम लेंगे, ये हमारा आएगा 2, ये 3 2 जा 6, ये भी 2, तो इसका मतलब 0/6, इसका नो सेक्रीफाइस नो गेन, ठीक है। इसी तरीके से टी का गेन या सेक्रीफाइस क्या निकालेंगे, 3/6 माइनस न्यू में कितना है 1/3, 3 6 का एलसीएम 6, 3 माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये हमारा 1/6, ये पॉजिटिव आया इसलिए ये सेक्रीफाइस। तो टी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, आर गेनिंग पार्टनर है। अब इसके लिए एंट्री क्या होती है, इसके लिए एंट्री अब क्या करेंगे, इसी गुडविल के अमाउंट का 1/6 तो गेन हुआ है तो निकालेंगे 1/6, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 25,000 आ गया। एंट्री क्या बनेगी, जो गेनिंग पार्टनर है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। 1/6 दोनों है तो इसका 25,000 डेबिट में हो जाएगा, 25,000 क्रेडिट में हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इस एंट्री की हमको यहाँ पे पोस्टिंग भी करना है। अब वहां पे जब कैश बुक पढ़े होगे तो कंट्रा एंट्री पढ़े होगे, ठीक है ना। कंट्रा एंट्री मीन्स व्हेन कैश एंड बैंक बोथ विल बी अफेक्टेड इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो दोनों साइड हम एंट्री करते थे, ठीक है ना। कैश बुक के डेबिट साइड में भी जाते थे, ठीक है ना, या तो कैश के कॉलम में या बैंक के कॉलम में एंट्री करते थे, और वही ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में जाते थे, कैश या बैंक के कॉलम में एंट्री करते थे एज पर द ट्रांजेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ये हमारा क्या बन रहा है, कैपिटल अकाउंट। आर के लिए जब एंट्री करने आएंगे तो आर का कैपिटल अकाउंट क्या है, आर ये जनरल एंट्री में आर क्या है, डेबिट है, तो आर का कैपिटल इधर डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला लिखेंगे। या ध्यान रखना, हम आर के लिए डेबिट साइड में आ रहे हैं क्योंकि एंट्री में आर डेबिट है, आर के लिए डेबिट में है, उसका क्या लिखेंगे, क्रेडिट वाला। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, ताकि पता लगे ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है। अमाउंट की क्या लिखेंगे, आर वाला ही लिखेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ की सेम है, हो सकता है कि यहाँ एस भी अगर सेक्रीफाइस कर रहा था तो एस, सॉरी एस नहीं, ये हमारा टी है, ठीक है ना। अगर एस भी सेक्रीफाइस कर रहा था तो एस भी क्रेडिट होता, लेकिन हम आर के सामने डेबिट साइड में जाके भले लिखते सबका नाम, लेकिन आर के सामने जो डेबिट होता है वही लिखते। तो 25,000। इसी तरीके से अब आर के लिए हमने पोस्टिंग एक बार कर लिया, अब टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। टी एंट्री में क्रेडिट है, टी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे क्या लिखेंगे, उसका डेबिट वाला क्या लिखेंगे, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है। अब किसके लिए हम क्रेडिट में है, टी के लिए, तो टी के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। टी के कॉलम में टी वाला अमाउंट लिखेंगे 25,000। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक सिर्फ पढ़ा था। अब इस एंट्री को बैलेंस शीट के सॉरी इसमें कैपिटल अकाउंट में कैसे लेके जाते हैं, आज वो चीज हमने देखा, ठीक है। अब हम सीधे क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं है, बैलेंस निकालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो 81,500, ये हमारा हो गया 71,000, ठीक है। ये हमारा 0 0 0
हमारा 1,10,500। ठीक है, अब इधर भी हमारा वही होना चाहिए, टोटल सामने सामने टोटल वही होना चाहिए 1,10,500। ये हमारा आ रहा है 71,000 और ये हमारा आ रहा है 81,500। लिखेंगे टू बैलेंस, सबका क्रेडिट साइड बड़ा है तो इधर ही बैलेंस आएगा, टू बैलेंस शीट इसमें आएगा। हम इसका बैलेंस निकालेंगे 0,0,5। ठीक है, ये हमारा 85,500। इसका बैलेंस डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो जो क्रेडिट में है वही रहेगा 75,000 और इसका हमारा 81,500। ठीक है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे हम कैपिटल नोट कर लेते हैं क्योंकि इसी कैपिटल से हम क्या करेंगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे। एक का है 1 लाख, ये हमारा बैलेंस आ गया 85,500। एक का है 71,000 और लास्ट का कितना है 81,500। ठीक है, हम इस साइड में बैलेंस शीट बनाते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट एज एट, उसी डेट पर जिस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2019। ये हमारी लायबिलिटी एसेट्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिख देंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे कैपिटल RST। अब देखो, अब जो इसमें कैपिटल दिया वो नहीं लिखेंगे, वो तो कैपिटल स्टार्टिंग की थी, एंड की कैपिटल इनकी क्या है, ये लास्ट में, ये का कैपिटल आया है लास्ट में 85,500। एक का आया 71,000 और एक का आ गया है 81,500। ठीक है, ये हमारा कैपिटल, तीनों का कैपिटल ऐड करके नई फर्म की कैपिटल यही हो गई। $2,38,000। इसी तरीके से और क्या दिया है, बिल्स पेबल। अब हमको रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले बिल्स पेबल देखेंगे तो क्या रिवैल्यूएशन में बिल्स पेबल कहीं कम ज्यादा हुआ था, तो बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, तो हम बिल्स पेबल की वही वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे जो इसमें दिया हुआ है 20,000। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जनरल रिजर्व हमको दिया हुआ है, पुरानी बैलेंस शीट से अब हम रेफर कर रहे हैं। जनरल रिजर्व क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व बढ़ करके खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर्स बुक में कितना दे रहा है 50,000, बट याद रखना क्रेडिटर 60,000 के खत्म हो गए, अब नहीं पे करना है, तो अब रिवाइज वैल्यू कितनी हो गई, फायदा हो गया ना, यानी 60,000 माइनस 6,000 तो 54,000 की क्रेडिटर। यही हम लोगों ने पढ़ा ना कि रिवाइज या चेंज वैल्यू रिकॉर्ड करना है। अब वही पुराना 60,000 नहीं लिखेंगे, 54,000 लिखेंगे। अब आते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले लैंड दिया हुआ है, लैंड पुरानी बैलेंस शीट में कितना है 50,000, बट याद रखना लैंड कितना है, बढ़ चुका है, अब कितना हो गया 80,000 हो गया था, तो लैंड की पूरी वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 80,000। इसी तरीके से बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो बिल्डिंग का पुराना बैलेंस कितना था 50,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना हो गया डेप्रिसिएशन हमारा 3,000 का डेप्रिसिएशन आया था, 3,000 माइनस करेंगे, नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 47,000। इसी तरीके से प्लांट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो वही वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख पुरानी वाली। इसी तरीके से क्या है स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, पुरानी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे 40,000। इसी तरीके से पुरानी बैलेंस शीट में डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स पे कोई प्रोविजन अगर बनाया होता, याद रखना डेटर्स पे अगर प्रोविजन होगा तो प्रोविजन क्या होता है एक्सपेंस होता है। हम तो पहले इधर लिखेंगे टू प्रोविजन, जैसे मान लो डेटर्स पर 10% प्रोविजन बोलता, तो डेटर्स की वैल्यू पे 10% निकालते, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते।
फिर बैलेंस शीट में जाते हैं, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं, बट यहाँ डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, 30,000। इसी तरीके से बैंक, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस में बैंक में या देखते हैं कहीं पे कोई कैश अफेक्ट नहीं हुआ या बैंक अफेक्ट नहीं हुआ, न तो कहीं से बढ़ा न तो कहीं से कम हुआ, तो हम बैंक वही वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। कितना दिया था? 5,000। ठीक है, अब हम सीधे बैलेंस शीट टोटल करते हैं। अगर हमारा इक्वल हुआ तब तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, $3,12,000 लाइबिलिटी साइड आ रहा है, इधर से चेक करते हैं। हमारा 3,02,000 आ रहा है, इधर आ रहा है 3,12,000, जबकि बैलेंस शीट हमारा इक्वल जब तक नहीं हुआ तब तक आंसर सही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक हुई है। हालांकि क्वेश्चन बुक में जो आंसर दे रहा है दैट इज 3,02,000, यानी हमारा एसेट साइड आ चुका है। लाइबिलिटी साइड में प्रॉब्लम है, तो लाइबिलिटी साइड में देखो अगर कोई मिस्टेक हुई होगी। क्रेडिटर्स कितना दिया था? हाँ देखो, लाइबिलिटी साइड में मिस्टेक हुई है। क्रेडिटर्स कितने थे? 50,000 के पहले से दिए हुए थे, 6,000 और कम हो गए, तो 50 में से 66,000 और कम हो गए, तो ये कितना 54 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 44,000 होगा ना। यही मिस्टेक थी, ठीक है ना। अब ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ गया 3,02,000। तो बैलेंस शीट दोनों साइड मैच करने का मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत शार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड जो चीज दिया होता है, गुडविल के लिए हमेशा वही करना होगा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर निकालना होगा, उनका शेयर, उस हिसाब से एंट्री में दोनों साइड में क्रेडिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे गुडविल लिखी हुई है। इसी तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए अगर बोल रहा है कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उस पर होने वाले गेन या लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में अगर कोई रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, उसके बारे में दोनों केस हो सकता है, जो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा तो गुडविल के अमाउंट के साथ उसकी भी एक ही एंट्री में पास कर सकते हो। अगर नहीं दिया है, कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, जो वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, आज के लिए वीडियो थोड़ा लंबी हुई, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बाकी क्वेश्चन खुद से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।